हिमाचल प्रदेश में दिलदोज सड़क हादसे कुंड कुलगामिक रोजन वल 6 मजूर मोक्सी पे जांबाग इलाकस मज खबर फैलने सत लोग दम फट। नो एजुकेशन पॉलिसी अमलावन सत तालिब इल्मन मयारी तालीम फराहम करनस मज आसानी जम्मू कशीर हिंदन तालिब इल्मन मज भरपूर सलाहियत बरोए कार अन्ने जरूरत मनोज सिन्हा। ताल से कोऑर्डिनेशन कमेटी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस मरकजी सरकार से फिरकस सत इंसाफ फराहम करने जिम्मेदारों मांग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हिमाचल प्रदेश मज ये आज अकिस सड़क हादसस दौरान वादी हिंद 6 मजूर जांबाग तो मजीद कया जख्मी सपद तत कजगुंड किस कुंड इलाकस मज तम सात लूक दम फट सपदमित ये मजूरन हिंज जांबाग सपदन खबर इलाकस मज वाच। वन हिमाचल प्रदेश मज तम सात सड़क हादसे पेश आमुत ये गाड़ ड्राइवर सद कोबू नबर सपज ये जन सड़क हादस मज कुंड कुलगामिक रोजन वल गुलाब अहमद, शब्बीर अहमद, मोहम्मद तालिब, गुलजार अहमद तो मुश्ताक अहमद नावक मजूर मोक्सी पे जांबाग सपदमित। हादसस दौरान ये रंजीत सिंह, ड्राइवर मोहम्मद असलम, तालिब हुसैन, आकाश कुमार, अजय ठाकुर तो मंजूर अहमद नावक शख्स जख्मी सपद तत जख्मी इलाज मुआलज बापत गांधी मेडिकल हस्पताल मज दाखिल करना आमद। यपर LG मनोज सिन्हान वाकस हवाल दुख इजहार करान दुखजद अयालन सजियत इजहार कोर्मुत ये जन मनोज सिन्हान सोशल वेबसाइट एक्सेस पे इन कथन हज बावत करान वोन तिमो जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगामिस हिदायत दितमित इंतजामिया तरफ गि मुतासर अयालन भरपूर ताउन करने युन युत जन तिमन मुश्किल वेतरन पेन। हिमाचल पे खबर वन ये नफर 6 बाल्टिंग नाड़क तम गुजरेम तती हिमाचल मज तुम क्या करने मुजूर करने गए तो वो बूज फेसबुक वन तो ये बाल्टिंग नाड़क 6 नफर गुजर कॉलनी हंद 6 नफर। पार्लियामेंट सेशनस दौरान ये आज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 हवाले बहस सपज तत मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन बहसस दौरान बिल हिंज हिमायत करान मरकजी सरकार तजवीज कर्म बिल हिंदिस मुसवदस मज गसन के तब्दीली अन्नीन युत जन ये मजीद मुफीद तो कारगर साबित सपदे। It is not that every tout, it is only the touters who operate from the court premises. Because our gullible people, the people who visit the courts, they are mostly affected by the people who operate from the court premises. That is why in para 5, clause 5, it says that the judge shall, one of the punishments will be that the judge will exclude him from the court premises. The person who finds his name in the list, the sessions judge or any other judge who is presiding over that court, he can exclude his presence from the premises of the court. That is, they shouldn't. So this is not targeted against all the touts, in whatever color and whatever costume they wear. It is only restricted to the touts who operate from the court premises, and one of the punishments to be proposed to be given is to exclude him from the premises. But while preparing this list, and fulfilling all the procedural requirements, the procedural due process, because a person cannot be declared as a tout unless and until he is given a reasonable opportunity, I don't think that the system devised under the Act is going to get the results that we targeted. Second is the target. One of the target groups is not only the gullible litigant, the litigant who comes to the court, visits the court for redressal of some grievance. It is also the junior lawyer, because these touts mostly eat up the work that may be dealt with by the junior lawyers, the entrants, the fresh entrants to the profession. So this is one of the welcome steps. This will be just received with that kind of enthusiasm by the junior lawyers who enter the new freshers in the law courts. But at the same time,
I would urge Honorable Minister to propose some kind of measure, some kind of amendment in the Education Act that provides for some honorarium or some kind of support to the fresh entrants, to the new entrants to profession. Because those are tough years for a junior lawyer. The initial 5 years are very tough years for junior lawyer. I had proposed a private member's bill for assistance to advocates. I think that would be a welcome step if that is done, so that they get some kind of a relief. But with that, with whatever I said about the mechanism and my reservations about the mechanism, it's a welcome step, and there should be some kind of a second look on it, so that instead of burdening the sessions judge or the presiding officer of the court with this exercise who's already overburdened, it will be better to have a designated officer like a vigilance commissioner, as we have in courts, in high court, a vigilance commissioner or a registrar of vigilance, the officer who is asked to exclusively deal with the problem and go and complete the exercise, and then only he will be able to efficiently identify the. जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हान आज जम्मूस मज मुनक़द तकरीब दौरान नवे एजुकेशन पॉलिसी हवाले कत करान वोनमुत ज़ ये पॉलिसी अमलावन सत तालिब इल्मन मय्यारी तालीम फराहम करनस मज आसानी सपद तत तालीमी निज़ाम बेहतर बनावनस मज ये पॉलिसी मुफीद नजर गसान। LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत ज़ जम्मू कश्मीर हिंदन तालिब इल्मन मज भरपूर सलाहियत मौजूद, ताहम यह सलाहियत बरोए कार अन्नच जरूरत तो अमे हवाले सरकारी सतहस पे कई कदम तुलना आमद। यलजन प्रोग्रामस दौरान तालिब इल्मों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आए। निजी तौर पर मैं इस बात में यकीन करता हूं कि हर एक बच्चा यूनिक टैलेंट से भरा हुआ है, उसे सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये नंबरों की दौड़, मार्क्स की रेस के बजाय उसकी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में, सृजन के कार्यों में लगाने, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं टीचर से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, उसकी कल्पना 20 वर्ष पहले नहीं की जा सकती थी। आज जो टीचर है, अगर वो अपने स्टूडेंट डेज को याद करेंगे तो लगेगा कि आज बच्चों के टिप्स पर जितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उन्हें वर्षों लग जाते थे। इसलिए आज बच्चे की जो सबसे अंतिम आवश्यकता है वह इंफॉर्मेशन का बोझ है। उसके पास टेक्नोलॉजी के एक्सेस की वजह से दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसलिए बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन तथा क्रिएटिविटी जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीखने के लिए मोटिवेट किए जाने की आवश्यकता है। आज 15 साल के स्टूडेंट्स जब 10 साल बाद रियल वर्ल्ड में कदम रखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के एक्सप्लोजन की वजह से दुनिया का स्वरूप ही कुछ और होगा। ऐसे में उन्हें सिर्फ नए आइडियाज या नए इन्वेंशन पर ही फोकस नहीं करना होगा, बल्कि अपने आप को भी री इन्वेंट करना होगा। और इसकी क्षमता वर्तमान में ही लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल से बच्चों में जागृत की जा सकती है। वादी कशीर मज ये सियासी लीडरों तरफ अकिस पे इल्जाम तरेशी कर तत भारतीय जनता पार्टी हिंद जिले सदर बंडपुर सियासी जमातन हुंद नाव हेत वोनमुत ज सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी हुंद हिस्स तो गलत बयानी कर लूकन गुमराह करने कोशिश करान। एनसी वालों की और पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल और अपनी पार्टी, इनकी दोगली पॉलिसी थी। मैं उनको कहना चाहता हूं कि लोग अवेयर रहे, जो अपनी पार्टी है वो भी हमारी पार्टी है, जो पीसी है वो भी हमारी पार्टी है, जो नवाब आजाद साहब है वो भी हमारी पार्टी है। ये लोगों को धोखा दे रहे और गुमराह कर रहे हैं। लास्ट शाम जो पहुंचते हैं हमारे पास होते हैं। मैं ये आपकी माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को अवेयर रहे, इनकी जासिब ना आए। जब आप इनके साथ मिलो तो डायरेक्ट आप बीजेपी के साथ मिलो। ये हमारे जिसको बोलते हैं कजन,
हमारे कजन सिस्टर्स भी है, कजन भी है, हमारे साथ है ये। बाकी दोगली पॉलिसी सियासत इन एनसी वालों की। और हाई स्कूल साथरा मंडी मज आज अक तकरीबी हुंद साज करना आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदो बच्चों तो जनियो शिरकत कर। अत मौकस पे ये आया हेल्परन मज आर्डर बगरन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो स्कूलन मज बच्चन हज रश रावट करने बापत यन प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन सरकारी स्कूलन मज बच्चन हंदिस दाखिलस मज ते इजाफ सपदे। हेडमास्टर हाई स्कूल साथरा 85% स्कूल बंद होंगे। और आज हमने जोन साथरा में यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं, हमारी बहनें हैं, 3 कैटेगरी को लेके, जिसमें आर्फन विडो डिवोर्स को लेके हमने यहाँ पे आज आर्डर जो है 52 उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो मैं उनको भी मुबारक देती हूँ कि जिस तरीके से हमारा यही कहना है कि आज जिस आर्डर हमने दिया है, इस जिम्मेदारी को लेके साथ चलें और अच्छे से काम करें। बाकी भी जितने भी हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है आया के आर्डर जो है वो दिए गए हैं, इन्हीं 3 कैटेगरी को लेके। चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो बीपीएल है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और बीपीएल वाले भी हमारी जितनी भी बहनें हैं, जेन्युइन जितने भी हैं, जो हमारी गाइडलाइन के मुताबिक इसमें ऑर्डर किए गए हैं। बाकी जो हमारे बीपीएल वाले हैं उनको भी बहुत जल्द ऑर्डर दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल बाइज पुंचस मज 5 दोहन ताम जारी रोजन वाले डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों तो वस्तादो शिरकत कर। अत मौकस पे ये डिजिटल प्रोग्रामस हवाल नोडल अफसरन तरबियत दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत अमे प्रोग्राम के साज कर मकसद यम ते ऑनलाइन सर्विस शुरू कर आम तम कथ इन स्कूलन मज इस्तेमाल मज अन युत जन सह मकसद पूरे सपदे यम बापत यम सर्विस शुरू करना आई। तो वो हम आपने उसके साथ साथ जो टीचर्स के लिए मैंडेटरी हो गया है वो एजुकेशन पुंछ ने जो है डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो है एक 5 रोज़ा ट्रेनिंग का यहाँ आयोजन किया है। ये ट्रेनिंग स्कूल के नोडल ऑफिसर्स के लिए है, ताकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जितने भी हमारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जो चाहे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अंदर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कैसे फीड करें, कैसे इसको अपडेट करना है। चाहे उसके अंदर जो है हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, जेम पोर्टल की बात करें, पेसिस की बात करें, एचआरएम की बात करें, हमारी समीक्षा पोर्टल है, बच्चों की फीडबैक कैसी जाएगी, हमारी यूडाइज के अंदर जो जिसके बेस पर जो है प्लानिंग होती है सारी, उसको कैसे भरना है, उसको अपडेट कैसे करना है। तो हर स्कूल के एक नोडल ऑफिसर को ट्रेंड किया जाए ताकि हमारी इंफॉर्मेशन टाइमली हायर अथॉरिटीज तक पहुंच जाए और उसके बेस पे जो फंडिंग होती है उस पन्नेर जागीर त्रालस मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले तकरीबी साज करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा तलब इल्मो अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लोगों शिरकत कर। अत मौकस पे ये सरकार चंद स्कीमन हवाले लूकन जान दिन आई तत तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करना आमत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हिंद जान दिनस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन आम लूकन यमन स्कीमन हुंद युत जन आम लूक यमन स्कीमन हुंद आसानी सान फायदे तुलित हेकन। अब क्या है, लगती है जमीन भी आसमान, घर में कश्मीर से बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, रहन सहन, आदात। और डिफरेंट जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनका जो लाभ है, जो उनके एक्चुअल बेनिफिशरीज है, उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। और इसी की एक कड़ी है जो हमारे ब्लॉक त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में एक फॉर फ्लंग एरिया है जिसको पैनल बोलते हैं, अभी हम मंदोर से आ रहे हैं। तो यहाँ के आवाम को भी डिफरेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के बारे में, जैसा कि आपने अभी बोला कि हमारे एग्रीकल्चर वाले, जल शक्ति वाले, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बोल चुके हैं और कुछ और बोलेंगे कि ताकि सभी लोग इस जो हमारा डेवलपमेंटल सिनेरियो है, डिफरेंट स्कीम्स हमारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।
ضلع شپین سے تعلق تھون والے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے قصبس مز چلڈرن پارک تعمیر کرنس حوالے کئی وری برو کام شروع کرنا آئی تاہم چھنہ آز تام یہ پارک تعمیر کرنا آمت بلکہ انتظامیہ طرف پبلک پارک کار پارکنگ مز تبدیل کرنا آمت یمکن عام لوگ مویوز سپد مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت پارک تعمیر کرنس حوالے گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن لوکن مز پید سپدمت خدشات دور کرنے ین بیسکلی اگر ہم دیکھیں 1978 میں اسے ایک چلڈرن پارک کے لیے اس وقت اناؤنس کیا گیا تھا کیونکہ 1978 میں یہاں واحد پارک تھی جو بچوں کے کھیلنے کے لیے تھی اور اسے بہت سے مرحلوں میں پیسے بھی لگا دیے گئے. آپ کو ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں ایک اوپن جم بھی ہے جس کو بھی اناگریٹ کیا گیا. اس وقت شاید ڈیوکام نے اسے اناگریٹ کیا تھا لیکن بدقسمتی سے پھر انہیں کوئی اس کا پارکنگ کا پروپوزل آیا لیکن ابھی تک نہ پارکنگ ہی بنی اور نہ ہی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی. یہاں تک میں نے سنا اس کا DPR سبمٹڈ ہے, کچھ فنڈز بھی آ گئے لیکن ہمارا جو مدعا تھا اس میں مقصد تھا کہ یہ بچوں کی پارک ہی رہے کیونکہ ہمارے یہاں اس پورے ایریا میں بچوں کے لیے کوئی پارک نہیں. 1978 سے یہ بچوں کی پارک ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پارکنگ کے لیے ان کو اور بھی اسپاٹ ملتے ہیں, یہاں بٹپورہ میں ہے یا دوسری جگہ میں یا ادھر سنگلو چوک ہے وہاں بن بازار میں وہاں بھی ان کے اسپاٹ ہے, HR کے پاس بھی اسپاٹ ہے. اگر یہ پہلے پارک تھی, پارکنگ میں کیوں شفٹ کیا گیا اس کو؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. اگر یہ پارکنگ بنایا گیا تو آپ خود دیکھیں گاڑی کیسے پھیلا ہوا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں. آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹرکس لگے ہوئے ہیں, ماروتیز لگی ہے, بڑے کاریں لگے ہوئے. پھر کس لیے پارکنگ بنایا گیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. اگر یہ پارکنگ ہے تو پارکنگ میں گاڑی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں, خود دیکھیں, آپ وزٹ کیجئے پورے ڈسٹرکٹ میں چاروں طرف گاڑیاں پھیلا ہوا ہے. تو اگر یہ پارکنگ بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بنایا گیا ہے, گورنمنٹ نے, ڈیوکام نے اس کو اناگریشن بھی کیا ہے پارک کے لیے, تو بیچ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا اپروچ کی وجہ سے کہ یا پارکنگ بنایا گیا یا تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈسٹرکٹ شوپین میں ہوا کیا. آپ دیکھیں کیچڑ کا بازار بن چکا ہے ادھر. کیچڑ دیکھیے, مطلب ہاسپٹل, بالکل ہاسپٹل کے قریب ہے پارکنگ, کیونکہ بچوں کے لیے صبح شام واک کرتے تھے, کھیلتے تھے بچے, انجوائے کرتے تھے اس پارک میں بچے. تو پارکنگ میں شفٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی غلط. کیا ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس کو پارک ہی رکھا جائے تاکہ لوگ جو یہاں سے بازار کے لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس کوئی کھیل نہیں. آل پارٹی سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس ساز کرنا آمت یتھ دوران کمیٹی ہندو ذمہ دارو مرکزی سرکارس منگ کرنا آئی سکھ فرقہ کن لوکن ہند مطالبہ پورے کرنس حوالے گھن سنجید قدم تلنے ین یت زن تمن مز پید سپزمس مویوسی دور کرنے یی. کشمیر کے سلسلے میں بہت سی بلیں جو ہیں وہاں پاس ہونے جاری ہیں اور اس میں ایک بل جو ہے وہ ریزرویشنز کی بل ہے جو JNK لیجسلیٹو اسمبلی میں انہوں نے کی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کا ایک پولیٹیکل جو سینیریو کیسے بنے گا, اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات پارلیمنٹ میں تھرو بل پاس ہونے کے لیے جا رہی ہے اس میں ایک, اگر آپ 2 سیٹیں کشمیری پنڈت کو ریزرو کر رہے ہیں وہاں سکھوں کے لیے بھی ایک بنتی ہے, پر ایک شیئر دیجئے. ایسا نہیں کہ آپ ہمیں اگنور کریں گے, نیگلیکٹ کریں گے. آلریڈی بہت سے سیکشن میں یہ مائنورٹی جو ہے بہت نیگلیکٹڈ ہے, ڈسکریمنیٹڈ ہے. تو اس لہذا ہماری بات صرف اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں تبھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہاؤس اس وقت ان ہے اور یہ لاسٹ سیشن ہے اور یہ ناظرین کوشر خبر نام جاری یتن نمو اخ تجارتی وقفہ.